मैं जब छोटा था मेरे को दिवाली से दिवाली एक क्लॉथ मिलता था पैर, करेक्ट। जबकि मेरी बेटी कभी भी कोई भी इवेंट के लिए खरीद के आती है। तो ये जो स्पेंडिंग है, बिकॉज हमारी इनकम बढ़ी है। What essentially you're saying, and to the viewers who are going to listen to this, is अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो look at India as a very vast basket and don't narrow your thoughts to only the top 100 or something, but look at themes also because they could probably play much bigger. मुझे बचपन में सिखाया गया था जब मैं 12वीं में पढ़ता था कि नितिन, जो पैसा आता है अगर तू इन्वेस्ट नहीं करेगा वो पैसा कहीं और खर्चा हो जाता है। I think the biggest takeaway नितिन जी was अगर आप फ्लाइट में बैठे हो और the turbulence है तो बैठा पड़ा पड़ेगा। You know, there is a pilot whose job is to do his job and make you reach safely to its destination. आप उस समय उठ के तो जा नहीं सकते, so why don't we use that principle in investing? No other country with the economic size of India would have this sort of a numbers. If you talk about the per capita income, then end of 2022, it stood at around 2,380 USD. In 2018, of course, we had hit 2,000 per capita, but the pandemic years sort of brought us back by a couple of years. But the growth post-pandemic has been accelerating. By 2030, it is estimated that we will be about 4,000 USD per capita. When you look at these numbers, the world is in wow. And it's no wonder why everyone sees India as the shining light, especially in the demographic period. But what about India and the Indian investors? What do they think about it? For that, today we are joined with Mr. Nitin Patel. He's a veteran in the mutual fund distribution community. He operates out of Ahmedabad and his daughter is also part of the business. And today he's going to help us understand consumerism and consumption as a theme. And together we are going to talk about what consumerism means in India and how the consumption theme is playing out in it. Nitin ji, welcome to Mumbai. थैंक यू सिंह जी। Consumption patterns in India have changed. First, post the global financial crisis, the importance of finance came to light. And recently, post COVID, we have now seen an emergence of a very different consumption patterns in the urban as well as the rural India. Now, to talk more about this, I'm going to straight away delve to Nitin ji and going to ask him about the questions that in the last decade, a lot of changes have happened, right? Especially if you look at 2010 to about 13, India's macro situation was not the best, right? And prior to that, we had a lot of themes in India which was launched, but not many of them gave probably great returns at that point of time. There was a lot of uncertainty around that. When you look back between 2010 to say today 2023, it's a 13-year cycle, what strikes you the most? What has changed? मिस्टर श्रीनिवास, 2010-11 के अंदर इंडिया ने पर कैपिटा इनकम $1,000 क्रॉस किया। जब कोई भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $1,000 क्रॉस करता है तो क्या होता है, वो जो बेसिक एक्सपेंस फैमिली के होते हैं वो फुलफिल होने के बाद वॉट एवर दे अर्न एक्स्ट्रा दे स्पेंड ऑन लीजर, दे स्पेंड ऑन कंजम्पशन, दे स्पेंड ऑन व्हीकल्स। तो जो चाइना में 2001 में हुआ था, वो 10 साल चाइना का जो ग्रोथ हुआ था, तो मुझे लगा कि 2011-10 में ये इंडिया में हुआ है तो इंडिया का भी इसी तरह से आगे ग्रोथ तेजी से चलेगा। एंड दैट इज व्हाई वी फोकस ऑन दैट थीम। नॉर्मली आई एम अगेंस्ट द सेक्टर फंड्स, बट दिस वन इज नॉट ए सेक्टर कैटेगरी, दिस इज बेसिकली एक कंट्रीज ग्रोथ स्टोरी। तो एक ग्रोथ स्टोरी में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते में एक वंदे भारत ट्रेन का इनोग्रेशन हो रहा है, जिस तरह से हमारा इनकम बढ़ती जा रही, द वे आवर कंट्री इज ग्रोइंग, तो उसका पूरा फायदा हमारे क्लाइंट को मिले, तो वो हिसाब से वी हैव फोकस ऑन दिस। राइट, सो आपने सेक्टर और थीम की बात करी। ये बात सही है कि 2010 से पहले एक सेक्टर फंड्स का एक प्रचलन था, आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है,
बट आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे बिटवीन अ सेक्टर एंड अ थीम? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? क्योंकि जैसे आज के दिन में यूरोप में जाओ या अमेरिका जाओ, जिसके भी घर घूमने जाते हैं तो मैं देखा है कि जितने आदमी इतनी गाड़ियाँ होती घर में। इंडिया में आज भी 1000 लोगों के पॉपुलेशन में हार्डली 100 के आसपास कार है, तो कार का सेल्स भी बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। फिर लिविंग स्टाइल देखना चाहते, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री चेंज हो रही है, तो ये तो पूरी कंट्री का ग्रोथ होने वाला है। तो पूरी कंट्री का ग्रोथ होने वाला है तो डेफिनेटली मार्केट को ग्रो होना ही है, क्योंकि वन समवन इज स्पेंडिंग, सम अदर पर्सन इज अर्निंग। राइट. सो आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मैनेज कर रहे हो. हमारे इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि 1000 फैमिलीज यू आर लुकिंग एट. आपने कुछ चेंज देखा है उनके पर्सपेक्टिव में? व्हाट दे यूज्ड टू थिंक अर्लियर, व्हाट दे आर थिंकिंग नाउ? यस, 2001 में जब क्लाइंट के पास जाते थे तब उनको डेट फंड भी सिखाना पड़ता था. व्हाट इज डेट फंड, व्हाट इज इक्विटी फंड, व्हाट इज बैलेंस कैटेगरी फंड्स. बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इन 10 साल का, तो 2010-11 में उल्टा होना चालू. क्लाइंट हमको क्वेश्चन पूछने लग गए कि भाई ये फंड है, आप इसमें कहने मतलब कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले अक्सर हम उसको सिखाते बोलने का. जब उसको बोलना आ जाता था हम उसको उल्टा सिखाते कि अभी क्या क्या बोलना है. तो अभी क्लाइंट बहुत बोलना चालू कर दिया है, तो उनको सब समझना पड़ता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं, व्हाट टू अवॉइड. राइट. आई एम टेलिंग यू एक वेरी गुड स्टोरी. रिसेंटली 3 days अगो मेरी डॉटर जो यूएस में पढ़ रही है, एमएससी इन फाइनेंस कर रही है, तो उसको एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है फाइनेंस का सब्जेक्ट. तो उसने एक लाइन बोली उसको कि हम यहाँ पे आपको अमेरिका में व्हाट नॉट टू डू सिखाने वाले हैं इन इन्वेस्टमेंट्स. She suddenly stand up and told my professor, this is what my father is teaching me since my birth. See, in investments, client को सब प्रोडक्ट लेनी होती है, सब रिटर्न चाहिए उसको, बट हम बोलते हैं कि what to avoid. Yes, एक मेडिकल स्टोर में 5000 प्रोडक्ट होती है. करेक्ट. बट एक पेशेंट को सबका सब टेस्ट करनी नहीं होती है, उसको बेस्ड ऑन हिज डिसीज. तो हम लोग क्लाइंट का प्रोफाइल देखते हैं, उसका शॉर्ट टर्म नीड देखते हैं, लॉन्ग टर्म नीड देखते हैं, देन वी रिकमेंड द प्रोडक्ट्स. राइट. So, consumption पे आते हैं. You have been a advocate of consumption theme as a category for a very long period of time, right? Almost since at least what we are aware of since 2000, since you started your business in 1999, but 2010, 2011 you mentioned about that thing. तो इसमें जो layers हैं investing के, वो how is it different from other consumer like other thematic products? consumption में क्या ऐसी खासियत है जो आपको लगती है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 2001 में जब मेरी बेटी का जो उसका बर्थ हुआ था, तब मेरे घर में एक भी एसी नहीं था. ओके. आज मेरे घर में 25 एसी लगे ऑफिस में से मिला के ना. वो टाइम पे हम बैंक में जाते थे तो फैन चालू होते थे. आज सब बैंक में एसी है. ये क्या होता है कि सब जब आदमी पैसा वाला होता है तो उसको कंफर्ट्स चाहिए, उसको अच्छे क्लोथ्स चाहिए. तो ये क्या है पर इनकम, ये सब आपको विजिबली दिखता है. मैं जब छोटा था मेरे को दिवाली से दिवाली एक क्लॉथ मिलता था पैर. करेक्ट. जबकि मेरी बेटी कभी भी कोई भी इवेंट के लिए खरीद के आती है. तो ये जो स्पेंडिंग है बिकॉज हमारी इनकम बढ़ी है. और ये इनकम बढ़ने से मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि ये रुकने वाला नहीं है. जब तक इंडिया में भी 1000 लोग में 1000 कार नहीं होगी तब तक ये बहुत स्टोरी चालू ही रहेगी, कंजम्पशन वाली स्टोरी. एंड दैट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 decades मिनिमम. तो इट्स लॉन्ग स्टोरी. ये ऐसा नहीं है कि साइक्लिकल जैसा है, एक साइकिल चल गया 6 महीने और 6 महीने के बाद वापस ये साइकिल रुक जाएगा. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. इट्स वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी. यू मे सी शॉर्ट टर्म कोई सेक्टर कोई अच्छा टेम्पररी कर रहा है, बट दिस थिंग हैज टू कंटिन्यू नेक्स्ट 2 to 3 decades. आई एम प्रीटी श्योर फॉर दैट. ओके. इंटरेस्टिंग. इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में स्पेशली इन इंडिया एक डिबेट है लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, और इसी इर्द गिर्द सारी कॉन्वर्जेशंस होती हैं. अगर इंटरव्यूज भी होते हैं तो इसी इर्द गिर्द होते हैं. ये सब में आपने एक कंज्यूमर थीम प्रोडक्ट को चुना, राइट? तो इसके सामने जो नेसेयर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं थीमेटिक सेक्टर्स में यू शुड नॉट रियली थिंक अबाउट सो मच क्योंकि इसके रिस्क एलिमेंट्स भी हैं, हर प्रोडक्ट के हैं, इसके भी हैं. व्हाट डू यू फील अबाउट
this talk that large cap, mid cap, small cap, and then there is thematic. So how do you? इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आज सब क्लाइंट आके बोलते हैं नितिन भाई स्मॉल कैप चाहिए। तो मैं उसको एक समझा रहा हूँ कि एक का ट्रक बिक रहा है या कार बिक रही है, तो कार का सेल का है तो 15 लाख का एक बिल बनता है, और उसको जो टायर सप्लाई कर उसका 1.25 लाख का 50,000 का बिल बनता है, उसके आसपास का जो भी ट्रक का होगा तो ज़्यादा बनेगा, कार का कम बनेगा। और उसको नट बोल्ट सप्लाई करने फास्टनर्स कंपनी होगी, उसका 10-15 हज़ार का बिल बनेगा। तो सुंदरम जो भी फास्टनर कंपनी हो मिड कैप स्मॉल कैप रहने वाली है, टायर कंपनी मिड कैप भी रहने वाली है, और जो भी है वो लार्ज कैप भी रहने वाली है। तो क्लाइंट को सिर्फ टायर कंपनीज में मतलब मिड साइज में इन्वेस्टमेंट करना या स्मॉल में करना है, मैं उनको बोलता हूँ कि पूरी इकोनॉमी ग्रो होने वाली, सबको ग्रो होना है साथ में। बट क्या होता है जब कोई सिचुएशन मार्केट में जैसे कोविड सिचुएशन थी, तो लार्ज कैप का पोर्टफोलियो 20-30% गिरते हैं, स्टॉक्स गिरते हैं, जो हमने मार्च 20 में देखा। वो टाइम पे स्मॉल कैप 60-70% गिरते हैं। जब वो बाउंस होते हैं तो हमको लगता है बहुत तेजी से बढ़े हैं, उसका फॉल भी ज़्यादा हुआ था। तो नॉर्मली क्या है, ऐसे टाइम पे जब मंदी के बाद में तेजी आती है तो लोगों को मिड साइज स्मॉल कैप कंपनी पसंद आती है। बट मैं उनको बोलता हूँ ये पूरी इंडिया ग्रोथ स्टोरी में टॉप 100 कंपनी का वेटेज 66% 70% है, तो पूरा इंडिया ग्रो कर रहा है तो 70% में फोकस ज़्यादा रखिए। 20-25% मिड कैप का वेटेज है, 101 से 500 भी जो सेबी ने कैटेगराइज किया है। इन रिमेनिंग 4200 कंपनी जो स्मॉल कैप है उसका 8-10% वेटेज है, मतलब एक TCS और रिलायंस जोड़ दो इतना वेटेज होता है। तो आपको पूरी बास्केट लेके चलना है जब पूरा कंट्री ग्रो कर रहा है। एक कैप को पकड़ के चलेंगे तो यू मे मिस आउट द ग्रोथ ऑफ इंडिया स्टोरी। आई एम टेलिंग यू। Right. So, what essentially you're saying, and to the viewers who are going to listen to this, is अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो look at India as a very vast basket and don't narrow your thoughts to only the top 100 or something, but look at themes also because they could probably play much bigger role. Or because consumption as a theme, Indian demographics में, right? मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि इंडिया में अभी फिलहाल 2000 एंड ऑफ 2020 ऑफ कोर्स हर 10 साल में आपको एक अंदाज लगता है बिकॉज ऑफ द सेंसस जो होता है, अंडर 50 पॉपुलेशन इज 80%, सो दिस एंड 37% is in the 25 to 50 bracket and the rest of them are under the 24 bracket. So 0 to 24 are the people जिनके लिए I could say the जिन पे खर्चा हो रहा है, right? Education है, childhood, everything. 25 to 50 is the earner and the spender because after that you have to start planning for your retirement. Now this data, if you take to 2050 also, we have nearly 68% of the population will still be under 50. Now that's a big number, right? And what essentially you're saying is this population is going to be the consumers. आपके in managing your clients, do you have any sort of anecdotes which you can share with us? हमारा तो बहुत अच्छा चीज़ है कि जब क्लाइंट 20 साल से हैंडल करते हैं, जो आज 20 साल की मतलब उम्र बढ़ गई है, तो हम उनको बोलते हैं कि आपके बच्चे को भी इन्वॉल्व करो। बिफोर दे स्टार्ट अर्निंग्स वी टीच देम हाउ टू इन्वेस्ट। तो फायदा ये है कि वो गलती करे उसके पहले वो सीख लेता है क्या करना चाहिए। Among your investors, what is the youngest age? yesterday I was sitting with one of my client, so मुझे बोल रहे थे कि नितिन, मैं बोला उसको बेटा आप बेटा को क्यों नहीं लेके आए, मतलब वो 8 साल का है। तो मैंने बोला वॉरेन बफेट बोल रहा है कि मैंने 11 साल में चालू किया इन्वेस्टमेंट और मैंने बहुत लेट किया, तो वो गलती आपके बेटे को नहीं करनी है। तो वो 8 साल से सीख लेगा आज। तो जैसे मैंने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था, मतलब मेरी एज वो टाइम में 17 ईयर्स थी, तो कुछ जो रूल मुझे सिखाया गया था वो मेरे दिमाग में काव हो गया है, मतलब ये ना कार्विंग हो गया है, तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। कि स्टॉक मार्केट मुझे 20 साल तक मालूम नहीं था कि सट्टा होता है। मुझे ये था कि स्टॉक मार्केट में जब मैं स्टॉक्स लेता हूँ, जैसे सिर का एक शेयर लिया है तो मैं सिर का पार्टनर बन गया, यू नो, आई वाज एंजॉयिंग दैट। करेक्ट। एक शेयर लिया या 100 शेयर लिया, पार्टनर हो। करेक्ट। तो वो हम बचपन से लोगों को, क्लाइंट के बच्चे को सिखाते हैं कि आप ओनरशिप बाय कर रहे हो कंपनीज की, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम लोन, आप डेट दे के लोन देते हैं, आप ओनरशिप, एंड दैट इज व्हाई बिफोर दे स्टार्ट अर्निंग वी टीच देम। राइट। ठीक है। So let's talk a little bit more about consumerism, right?
या कंजम्पशन थीम. कंजम्पशन सुनते ही सबसे पहले आता है ई कॉमर्स, FMCG, maybe some electronics. For a lay person, how would you define consumerism or consumption? नहीं, ये आपकी बहुत बढ़िया बात है. जैसे लोग बोलते हैं कि नितिन भी IT स्टॉक ही चलने वाले हैं. अभी मैं रिसेंटली हमारे वहाँ अदानी इंजीनियरिंग कॉलेज का हेड को मिला. उसने बोला बच्चे लोग सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में एडमिशन नहीं लेते हैं, उनको सिर्फ को IT पढ़ना है. मैंने उनको बोला IT इज़ ए प्लेटफॉर्म. एक कार यूज़ होने वाली है, एक बिल्डिंग बनने वाला है, तो कंजम्पशन होने वाला है, तो वो बनाने के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए हमको. तो क्या है, इफ़ यू फोकस प्योरली ऑन ग्रोथ स्टॉक, IT स्टॉक्स, तो नहीं होने वाला है. यू हैव टू फोकस ऑन, क्योंकि हम लोग एक चीज़ यूज़ करने वाला वो कहीं फैक्ट्री में बनने वाली है. ऐसा नहीं है कि वो IT अपने आप बना लेगा या रोबोटिक्स से बने. यस, रोबोटिक्स यूज होगा बनाने में. एट एंड ऑफ द डे समवन हैज टू वर्क ऑन दैट प्रोडक्ट. बिल्डिंग बनाने में तो उसमें भी इंजीनियर्स चाहिए. ये मटेरियल सीमेंट यूज होने वाला है या स्टील यूज होने वाला है, ये बंद नहीं होने वाला है. तो हमको एक पर्टिकुलर सेक्टर देख के काम नहीं करना है, हमको कंट्री का ग्रोथ देख के काम करना है. ये कंट्री का, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है. रीजन बीइंग पर कैपिटा इनकम. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट यस, अच्छी पार्टी होगी तो मार्केट में स्टेबल गवर्नमेंट के इम्पैक्ट अलग होते हैं. बट ये ग्रोथ से अटकने वाली नहीं है इंडिया में. 2-3 डिकेड नहीं अटकने वाली पक्का. सो आप अगर बहुत सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी में दोस्त यहाँ रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, who are also in this business, right? And उनके लिए अगर एडवाइस है कुछ कि थीमेटिक फंड्स को कैसे यूज किया जाए पोर्टफोलियोज में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? थीमेटिक फंड कोई अगर पूरी कंट्री का ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेफिनेटली जाना चाहिए पूरी कंट्री के ग्रोथ के ऊपर. और अगर वो पूरी कंट्री की ग्रोथ में उसका कुछ पार्ट रोल है तो डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, पास्ट में थीमेटिकल फंड्स ने जो 10-10 साल तक अंडर परफॉर्मेंस दिया है बेंचमार्क से, और कोई क्लाइंट या कोई इन्वेस्टर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि 10 साल वेट कर सके. कितनी भी वो SIP कर रहा हो, कितना भी STP कर रहा हो, they can wait for another 2-3 years maximum. Sure. But they cannot wait for a decade to, and we have a history that up to 10 years तक कोई specific thematic fund ने परफॉर्म नहीं किया है. एयरलाइंस, टूरिज्म, तो ऐसा नहीं है कि इसमें क्या नहीं है, तो कुछ सर्टेन साइक्लिकल कंपनीज नहीं है. बाकी इवन IT कंपनीज भी आ जाती है. कंजम्पशन मतलब क्या है, इंडियन पॉपुलेशन जो यूज करेगी, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करती है तो वो कंजम्पशन में आता है. कोई प्रोडक्ट यूज करती है तो वो इंडस्ट्री में आएगा ना. तो कंजम्पशन थीम हैज ए वास्ट एरिया ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लॉन्ग सस्टेनेबल इंडस्ट्री है. क्योंकि ये ग्रोथ अटकने वाला नहीं है. मैं एग्जांपल देता हूँ कि बचपन में मैं एक बेल्ट खरीदता था तो मैं 20 रुपये का बेल्ट खरीदता था. आज मेरी बेटियाँ 50,000 रुपये का बेल्ट खरीदने में भी अटकती नहीं है. मेरा मोबाइल iPhone 13 है तो वो iPhone 15 यूज़ करती है. तो ये जो एज ग्रुप है, अभी रिसेंटली मैंने कहीं एक इंटरव्यू में देखा था कि 18 to 36 एज ग्रुप जो है पूरे वर्ल्ड में, उसका 50% पॉपुलेशन इंडिया में है. आधा, मतलब सोचिए पूरे वर्ल्ड का ग्रोथ में अपना इम्पैक्ट क्या आने वाला है. ये बच्चे रुकने वाले नहीं है. वो किसी ना किसी को देख के वो बोरो करके भी खरीदने वाले हैं. तो ये मतलब मेरा स्ट्रांगली मानना है कि दूसरा, चाइना ने एक चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उनका थोड़ा स्लो डाउन हो गया है. अपने यहाँ अभी कोई 2 भी अटकने वाली नहीं है पॉलिसी. 2 से भी ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं यहाँ में. तो ये पॉपुलेशन को अटकने वाला नहीं है इंडिया में. तो चलने वाला है नंबर 3. तो चाइना की, सिंस आपने चाइना की बात करी, चाइना में 4-to-1 एज अ थीम एक्चुअली वर्कड, राइट? 4 grandparents, 2 parents, 1 prince or princess. That was the model. So you had almost 6 set of hands on one child. Yes. So till the time the child is standing on its own, all support is being given. So parents, of course, as you know, is the biggest consumers, right? I mean, they are the most spenders. So वो एक थीम जो है जिसकी वजह से चाइना में जो ग्रोथ आई, जैसे आपने कहा, क्या आपको दिख रहा है अब इंडिया में वो चीज? नहीं, वो क्या था, 4 लोग कमा के एक को फंडिंग कर रहे, 6 लोग. अभी उल्टा हो रहा है. तो 4-6 लोग रिटायर हो गए, अभी एक आदमी को 6 को फंड करना है, तो बहुत तकलीफ हो रहा है. बिकॉज वहाँ पे. बट इंडिया में तो इंडिया में तो क्या है, 4-2-2 नहीं है, 4-4-4 ही है इंडिया में. 2 तो मिनिमम है हमारे वहाँ.
तो पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है यार, वो डिक्लाइन नहीं हुआ स्टार्ट अभी। तो ये थीम जब तक हम लोग डिक्लाइन नहीं देखेंगे, एंड इट विल इन दी 140 करोड़ पॉपुलेशन, वो इतना इमीडिएटली डिक्लाइन दिखने भी नहीं वाला है। मतलब बोलूँ कि मुझे तो आई एम वेरी, मतलब मेरा ब्लाइंड हो गया हूँ कि 2-3 साल तक मुझे कुछ देखना ही नहीं है, 2-3 डेकेड तक, सॉरी, Okay. ये थीम चलने वाली So है। you're that bullish. आई एम सो बुलिश बिकॉज 140 करोड़ का पॉपुलेशन, इतना मोमेंटम है, इसको रोक नहीं सकते इतना इजीली, इतना इजीली रोक नहीं सकते हैं। तो और पर कैपिटा इनकम सपोर्ट कर रही है, तो अगर 4 गुना इनकम बढ़ने वाली है फैमिली की, और उसमें बेसिक एक्सपेंस तो उतने रहने वाले हैं, तो दे विल स्पेंड, व्हेन दे स्पेंड, इकोनॉमी में कोई ना कोई इंडस्ट्री कमाने वाली है, राइट। Right. Yes, I think चाइना से कंपैरिजन में अगर हमारा पर कैपिटा इनकम देखें तो वो कहीं पे अभी 13-14,000 USD पे है, हम अभी 2300 पे हैं, राइट। बाय एंड ऑफ मे बी 2030 विल बिकम 2600, बट लाइक यू आर राइट, वो जो जे कर्व एक आता है वो आई थिंक समवेयर वी आर पार्ट ऑफ इट। तो ये नितिन जी बहुत होता है कि व्हेन दिस थिंग्स आर हैपनिंग we don't come to know, it's only when you look behind is when you know that। तो अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो शायद इस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझते, राइट। उनके लिए आपका फ्यूचर के लिए क्या एडवाइस है? एक ही चीज है, 4 to 1 है, वहाँ एक आदमी स्पेंड कर रहा है, यहाँ 4 लोग स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कम है बट वो बढ़ रही है, तो वहाँ $13,000 पर कैपिटा इनकम है, खर्चा करने वाला 6 में से एक ही बंदा है। अपने यहाँ पर कैपिटा इनकम $1,000 पर खर्चा करने वाले 4 लोग हैं। कहने मतलब क्या है, तो अल्टीमेटली वो स्पेंडिंग करेगा, स्पेंडिंग करता है, और वहाँ एक ही आदमी स्पेंड कर रहा है। आप जैसे रेशियो देखते हैं 4 to 1 है, अपने यहाँ 4-4-4 देखते हैं कि 4 लोग हैं तो नीचे भी 4 है, नीचे भी 4 आने वाला है। तो ये तो मेरे हिसाब से तो ये अपने यहाँ तेजी से बढ़ेगा, तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो वी हैव अ वेरी एक्सप्लोसिव इफेक्ट आएगी इसमें इंडिया में। जब तक पॉपुलेशन कम नहीं होगा तब तक ये सॉलिड ग्रोथ होने वाला है पक्का। And before we close, one important question. I think that's a question which generally we don't talk about, क्योंकि रिटर्न दिखता है, रिस्क नहीं दिखता। तो कंजम्पशन एज अ थीम, रिस्क क्या है इंडिया में? रिस्क इक्विटी मार्केट में जो है वो वॉलेटिलिटी इज द रिस्क, रिटर्न इज नॉट द रिस्क। तो वॉलेटिलिटी जब आती है तो चुपचाप बैठे रहो। फ्लाइट में बैठते हैं तो फ्लाइट में कभी कभी आते हैं, तो हम बैठे रहते हैं अंदर, उतर तो जब कुछ तो नहीं You cannot, of तो course. बैठे रहना है। एंड दिस एक चीज़ मैंने देखा हिस्टोरिकली, बिकॉज मैं 1982 से शेयर मार्केट स्टडी करता हूँ, उसकी और वो काउंटर काम करता है। जैसे कभी कभी क्या वो डिफेंसिव स्टॉक है, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम होता है कोई भी वजह से, तो पीपल गो टू डिफेंसिव स्टॉक्स, क्योंकि कंजम्पशन तो बंद नहीं होता, लोग साबुन तो घिसते ही है, तो कंजम्पशन कभी अटका मैंने आज तक देखा नहीं। अब देखिए हिस्टोरिकली कि इनकी डेविएशन बहुत कम होता है इंडेक्स से, सिर्फ कंजम्पशन स्टॉक्स का, तो कोई मुझे उसमें डाउट नहीं है ये थीम के ऊपर। So volatility, you said the word is the only risk, right? Return to, like you said, is not. So what's your advice to people then? SIP is a good route in this product, or you should be then looking? सर हम गाड़ी खरीदने जाते हैं लमसम में खरीद के आते हैं, फ्लैट खरीदने जाते हैं लमसम में खरीदने आते हैं, और इक्विटी में आते हैं तो हमको STP नहीं दिखता है। मैं बोल रहा हूँ जिस तरह से पैसे का फ्लो आता है ऐसे डाल दो। जैसे मेरे पास हर महीने का इनकम होता है तो मैं एवरी मंथ SIP करता हूँ, बट 3 years ago बिफोर कोविड मेरा घर पुराना बिका था, तो मैंने एक साथ में इक्विटी फंड में डाल दिए थे। ये नहीं देखा, मुझे मालूम नहीं था कोविड होने वाला था, कोविड हुआ पोर्टफोलियो 20-25% डाउन भी हुआ था, बट वो होल्ड करो, खत्म, होल्ड किया वापस अभी। तो कहने का मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी है तो बाकी एसेट तो हम लोग नहीं बेचते हैं। जब कोविड के टाइम पे किसी ने घर तो नहीं बेचा, किसी ने बाकी तो कोई चीज़ नहीं बेची, जो बट प्रॉपर्टी स्टॉक मार्केट में लोग पैनिक हो गए। तो पैनिक नहीं होना, वो तो बेसिक होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री बंद नहीं होने वाली है। Correct. मुझे लोग बोलते थे लेकिन भाई इतना सारे लोग मर रहे हैं, ये हो जाएगा, ठीक है ना, हम मर जाएंगे तो फिक्र मत करो, बट बच गए तो इक्विटी का फायदा हमको मिलने वाला है। बैठे रहो चुपचाप, निकालने का कोई रास्ता ही नहीं, पैसे निकालेंगे लॉस में तो मतलब ही नहीं है कोई। राइट, आई थिंक आपने जो कहा कि वो जब पैसे हैं और ज़रूरत नहीं है और लॉन्ग टर्म तक ज़रूरत नहीं है तो आप उसको ज़रूर इन्वेस्ट करो, डोंट गो फॉर दी STP और SIP गेम। एक चीज़ है, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज SIP कैश फ्लो इशू है, राइट।
पैसे नहीं है, सैलरी से आएंगे तब हम इन्वेस्ट करेंगे. STP is something where you know people have the money, but then some risk element sort of pops up and you decide not to enter it. But interestingly, you are saying that if you have it and you do not have the vision that I don't need it immediately for 3-4 years, then might as well go for. मुझे बचपन में सिखाया गया था जब मैं 12वीं में पढ़ता था कि नितिन जो पैसा आता है अगर तू इन्वेस्ट नहीं करेगा वो पैसा कहीं और खर्चा हो जाता है. वो बारिश का पानी जैसा है, अगर हम लोग ने डैम नहीं बनाया वही टाइम पे तो पानी बह जाएगा, दरिया में चला जाएगा. तो क्या होता है जब हम STP करते हैं तो वही टाइम पे कुछ खर्चा आ जाती है तो इमीडिएटली लिक्विड से पैसे निकाल लेते हैं तो STP का खत्म हो जाता है. एक साथ में डाल दिया पैसा, एक साथ में ग्रो होना चालू हो जाता है. सेकंड थिंग, जो कंट्री में लास्ट 40 साल से मार्केट 12-15% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है तो मुझे ये लगता है कि मैं एक महीना लेट करूंगा तो मैं 1% महंगा लूंगा चीज़, क्यों आज नहीं ले लूँ. लोगों को ये लगता है कि आज नहीं डालूंगा, आज डाल दूंगा और मार्केट गिर गया तो क्या. मुझे तो गिरने के कभी ख्वाब में भी नहीं आता है, ख्वाब में भी नहीं आता मार्केट गिरेगा ऐसा. मुझे ये लगता है आज का डाल दो, मैं कभी रुकता नहीं हूँ. जैसे मेरा घर बिका था, जैसे जैसे सामने वाली पार्टी ने पैसा लेना चालू किया मेरे अकाउंट में क्रिएट हुआ, सेम डे वो इक्विटी में चला गया. आई नेवर वेट फॉर 24 आवर्स फॉर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज. Wow. So I don't believe in STP. I'm frankly speaking. जबकि पूरा वर्ल्ड बिलीव करता है, बट मैं इंडिया ग्रोथ से मैं बिलीव नहीं करता हूँ STP के थ्रू. Okay, all right. I think the biggest takeaway, नितिन जी, was अगर आप फ्लाइट में बैठे हो और the turbulence है तो बैठा पड़ा पड़ेगा. There is a pilot whose job is to do his job and make you reach safely to its destination. आप उस समय उठ के तो जा नहीं सकते. So why don't we use that principle in investing? And I think that's a great anecdote for today. Great. I think we've had a great chat with Nitin ji. Nitin ji, thank you for coming down from Ahmedabad and to our office and talking to us on the entire subject of consumption and how you feel that this is one segment which people should take it more seriously as a theme. And look at all the aspects. Well, look at the risk, look at this, but don't just look at large cap, mid cap, small cap. If you want to invest in the country like India, then consumer theme could be a great opportunity. Yeah. Thank you so much. Thank you. That's it. That's a wrap for us today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.